You, Frank. Okay. Okay. So thank you, Ajit, for your welcome. धन्यवाद अजित आपके स्वागत के लिए। Today, as I shared on WhatsApp, and we are going to look at about fasting and intercession. और जैसे आज हमने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल दिया था कि आज हम उपवास के बारे में और मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में देखेंगे। So, if you have your Bibles, please come with me to Jonah 3, verse 1 to 10, actually. अगर आपके पास शास्त्र है तो कृपया करके हमारे साथ आइए पुराने करार में जोना के किताब में, जोना के पुस्तक में तीसरे अध्याय और हम पहले 10 वचन देखेंगे। If you don't know where is Jonah, it is after Amos and Obadiah. After Ezekiel and all, okay? एजिकेल ओबडाया, अगर आप इन पुस्तकों को जानते हो तो वहाँ पे जोना भी है। Okay. और Okay. So मिका के पहले okay. So I'm going to read. फ्रैंकी पढ़ेंगे। Okay. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, "Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it." Sorry. Preach to it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city and 3 day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Then the word came to the king of Nineveh, and he rose his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, "Let neither man nor beast, herd or flock taste anything. Do not let them eat or drink water, but let them and the beast be covered with sackcloth, and cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil ways and from the violence that is in his hands. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger, so that we may not perish?" Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that he had said he would bring upon them, and he did not do it. हम देखेंगे योना के तीसरे अध्याय पहले 10 वचन। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसका उस पर प्रचार करे। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीक की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा के प्रधानों से समित लेकर निनवे में इस आज्ञा का डिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और क्या ही पशु कोई भी न खाए, वे न खाएंगे और ना ही पानी पिएंगे। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़कता हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी
और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। This is a beautiful story of how God's showing His mercy upon a city. और ये बहुत सुंदर कहानी है जहाँ पे परमेश्वर अपना दया दिखाता है एक नगर के ऊपर। And Nineveh city was about to be destroyed because of their wickedness. और निनवे नगर जो है उनके कुकर्म के कारण उनका नाश होने वाला था। And but what happened is in this story, when Jonah went and preached in this place, लेकिन क्या हुआ इस कहानी में जब योना वहां पे जाके प्रचार करने लगा and the people responded with prayer and और fasting. लोगों ने प्रतीत की उपवास और प्रार्थना से। And verse 7 says that everyone in their kingdom prayed and और fasted. अगर आप 7वें वचन को देखते हो वहां पे लिखा है उस राज्य में उस नगर में सभी लोग ने उपवास और प्रार्थना की। And the end of the story is that God relented from destroying the city. In verse 10 it और says. 10वें वचन में अगर आप देखेंगे वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और हानि वहां पे नहीं आई। You know, first thing I want to tell you is fasting and prayer helps actually to fulfill God's will. सबसे पहली बात हमें देखना है कि जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने में हमारे जीवन में जो उनकी इच्छा है वो पूरे होने में मदद करता है। You know, Jonah was actually not sent to the Nineveh city to destroy the city. अगर आप देखेंगे कि योना को उस नगर में इस कारण भेजा गया ताकि वो लोग जान जाए कि उस नगर का नाश होने वाला है। And God didn't send them to destroy the city. लेकिन योना को नहीं भेजा गया था उस शहर को नाश करने के लिए। See, God was already planned to destroy because of their sin. परमेश्वर ने पहले से योजना बना ली कि उनके कुकर्म के कारण उस शहर का नाश होने वाला था। But Jonah was sent to show God's mercy and love, so that they may hear and be escaped from that destruction. लेकिन योना को इस कारण वहां पे भेजा गया ताकि वो परमेश्वर के दया और करुणा को बता पाए वहां पे और वो नगर जो है बच जाए उस हानि से। So Jonah was sent to show God's love and mercy. That is God's will. तो योना को इस कारण वहां पे भेजा गया कि लोग परमेश्वर की दया परमेश्वर के प्रेम को जान पाए। यही तो परमेश्वर की इच्छा थी। There is always punishment for wickedness. देखिए कुकर्म के लिए हमेशा एक दंड है। And God is a God of justice also. परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। And through Jonah, God is telling the people to repent of their wrongdoings. और योना के द्वारा परमेश्वर लोगों से कह रहा है कि वो ये पश्चाताप करे। And even if you see the whole story, it's very small book, only 4 chapters. The next chapter, actually, we see that even Jonah want to the people to be destroyed. Like many of us, we think, if somebody's done something wrong, they should be punished. और ये काफी दिलचस्प कहानी है, छोटी सी कहानी है। ये पुस्तक जो है सिर्फ 4 अध्याय है इसमें। और अगर आप चौथे अध्याय में को देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि योना भी यही चाहता था कि परमेश्वर उस शहर का नाश करे। Like all of us. और हम भी ऐसे ही सोचते हैं। Something done, something wrong, and good he got that punishment. कभी कभी हम सोचे कि इसने ऐसा किया अच्छा हुआ उसके साथ बुरा हुआ। Okay, but that is not God's will. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Yes, God is God of justice, but God's love and mercy overcomes the justice of हाँ God. परमेश्वर तो न्याय का परमेश्वर है लेकिन वो एक दया और प्रेम का भी परमेश्वर है और परमेश्वर का दया और प्रेम उसके न्याय से भी आगे बढ़ता है। And so when people heard the message that they are called to repent of their wickedness, तो जब लोगों ने सुना कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है उन्होंने पश्चाताप की उनके कुकर्म से। so how they responded. Everyone in their land fasted and prayed. और उन्होंने कैसे प्रतीत किया, उन्होंने कैसे पश्चाताप किया। सभी लोग वहां पे उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया। Verse 7 says, 7वें वचन में लिखा है, the second part it says that let neither men nor beast, herd nor flock taste anything. Do not let them eat or drink water.
7वें वचन में लिखा है कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या पशु कोई भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। So there was a period of time for all the, even to the animals, not to eat anything. तो एक समय था मनुष्य और प्राणी दोनों ने उपवास किया, Maybe children also, शायद बच्चों ने भी, old people. जो बुजुर्ग है वे भी, It's a king's command actually. क्योंकि यहाँ पे हम देखते कि वो राजा का आदेश था Okay, to fast all of them, no food. कि वो सभी लोग उपवास करें, खाना नहीं खाना था किसी को भी। And then it says in verse 8, they say they cried in a great voice, they cried mightily. और 8वें वचन में लिखा है और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर करने लगे। And the king said everyone should stop doing what is wrong in the और kingdom. राजा ने ये भी कहा कि जो भी वो गलत कर रहे हैं वो करना बंद करना है। And they done like that. और उन्होंने ऐसे ही किया, They repented. उन्होंने पश्चाताप किया। And verse 10 says, so God relented and he didn't destroy Nineveh city. और 10वें वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उन्होंने उस नगर का नाश नहीं किया। God always want to show mercy and love. परमेश्वर की हमेशा यही इच्छा है कि वो अपना दया और अपना प्रेम को दिखाए। Jesus also came so that he can show his love and mercy to us. यीशु मसीह तो इसीलिए आए ताकि वो परमेश्वर का दया और प्रेम दिखाए हमें। If you have not experienced God's love and mercy, call upon Jesus, believe in Jesus, what he done on the cross for you, for the punishment of your sin. You can to experience the love and mercy of और Jesus. अब तक अगर आपने परमेश्वर यीशु मसीह का दया और उनके प्रेम का अनुभव नहीं किया है तो ये समय है क्षमा की ओर पुकारो और अनुभव करो और उनके क्रूस की ओर देखो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, आपके पापों को वो क्षमा करता है और आप भी उनके दया और प्रेम का अनुभव ले सकते हो। We as a church entering into a time of prayer and fasting from tomorrow onwards. हम एक कलीसिया के नाते कल से एक समय के लिए उपवास और प्रार्थना में जा रहे हैं। 20 days. 20 दिनों का उपवास और प्रार्थना है। And it is a time to turn to God. और एक समय है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े and experience His love and mercy in our और life. उनके दया और उनके प्रेम का अनुभव करें हमारे जीवन में। When we pray and fast, first thing what happens is it helps us to know God's will in our और life. जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो ये हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने अपने जीवन में। In the Bible, in the New Testament, many times it says when they prayed and fasted, God gave them vision and dreams, and God spoke to them. नए करार में अगर आप देखते हो बार बार जब लोगों ने उपवास और प्रार्थना की, वहां पे लिखा कि परमेश्वर ने दृष्टांत के द्वारा उनसे बातें की, उन्हें बुद्धि ज्ञान दिया कि आगे कैसे बढ़ना है। So fasting is always abstinence from food. तो जब हम उपवास के बारे में सोचते हैं, हमेशा उपवास का मतलब होता है कि हम खाना नहीं खाते। Okay. Some people will say, if I don't eat food, I will feel tired. कुछ लोग सोचे कि नहीं अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो थक जाएंगे। Of course, you will feel tired. हाँ, बिल्कुल थकान तो होगी। Okay, that is fasting is. यही तो उपवास है। So it's a period of time. ये एक समय के लिए है। Okay, and I want to encourage you, if you are praying and fasting, fast according to your capacity. मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि अगर आप उपवास और प्रार्थना करते हो, उपवास अपनी क्षमता के अनुसार करो। Okay, if you want to skip one meal, 2 meal, but skip a meal and fast. अगर आप चाहते हो कि आप एक टाइम का खाना नहीं खाए या 2 टाइम का खाना आपको नहीं खाना है, जो भी है, लेकिन सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि उपवास करो। Okay, and if you read the story of Daniel, अगर आप दानियल की कहानी को पढ़ते हो, Daniel chapter 10, it says there in verse 2, he fasted. दानियल का 10वां अध्याय और दूसरा वचन में लिखा है कि दानियल ने भी एक उपवास रखा। And verse 16 to 9 in chapter 10 of Daniel, it says there that Daniel also felt tired, weak. और दानियल के 10वें अध्याय 16वें वचन से आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि दानियल भी थक गया, वो कमजोरी महसूस की।
And it says that God came and strengthened him. और लिखा है कि परमेश्वर आके उन्हें ताकत दिया। But if you look at the life of Daniel, he was a man of vision. Whenever he fasted and prayed, God appeared to him. God came in vision, and he had a lot of dreams and visions. लेकिन अगर आप दानियल की कहानी को देखते हो, उनके जीवन को देखते हो, वहां पे आप देखोगे कि जब भी उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन्हें दृष्टांत दी। दानियल की कहानी में बार बार परमेश्वर उन्हें दृष्टांत के द्वारा उनसे बातें करता है। So it is very, what happens when we pray and fast is that God will give you vision. God will reveal his will, what he is going to do in advance to you. और जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमसे भी बातें करेंगे दृष्टांत के द्वारा। परमेश्वर हमें बताएंगे कि वो हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। Recently, somebody has to go somewhere, हाल ही में किसी को कहीं पे जाना था, and I mean, I was worried whether that person will be able to go or not. और मैं सोच ही रहा था कि वो जा पाएगा या नहीं। But one day I had a dream. लेकिन एक दिन मैंने एक स्वप्न देखा। It was last week, पिछले हफ्ते की बात है। and I saw this person in my dream, and he's going to that place. और मैंने इस व्यक्ति को देखा अपने स्वप्न में, और मैंने ये भी देखा कि वो व्यक्ति एक जगह पे जा रहे थे, And where he's supposed to go. जहाँ पे उन्हें जाना था। Okay, so I was bit cool and relaxed. I mean, I was not worried. God was telling me, don't worry about it. This person will go there. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे शांति महसूस हुई, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये व्यक्ति वहां पे जरूर पहुंचेंगे। Okay, so what I want to tell you is, God will tell you in advance and through dreams and visions what is going to happen. तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे स्वप्न के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, आपको बताएंगे पहले ही क्या होने वाला है, Even what you should do और also, आपको क्या करना है वो भी, when you pray and fast. जब आप उपवास और प्रार्थना रखोगे। That will help you to fulfill God's will in your life. ये आपकी मदद करेंगे ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर सकें। And another thing, what happens when we pray and fast, you will experience deliverance from demonic and even bad habits. दूसरी बात जो हम देखेंगे जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, कि हमें छुटकारा मिलता है शैतानी कार्य से, हमारी बुरी आदतों से। In Mark chapter 9 verse 29, Jesus said, some of these evil things will go only by prayer and fast. मार्कुस का 9वां अध्याय 29वां वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि कुछ ऐसी बातें सिर्फ उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही जाएगा। And it was when a small when a boy was filled with the evil spirit was brought to Jesus. और जब और ये तब की बात है जब एक छोटे बच्चे को यीशु मसीह के पास ले आए थे, और उस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा थी। And Jesus prayed, and his disciples couldn't set that boy free, but Jesus prayed, he was set free. शिष्यों ने प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया तो उस लड़के ने छुटकारा पा So लिया। disciples asked Jesus, why when we prayed it didn't happen? तो शिष्यों ने यीशु से पूछा कि जब हमने प्रार्थना किया तब ऐसे नहीं हुआ। So Jesus said, some of these things will go only by prayer and और fast. तब यीशु ने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना की और उपवास के नहीं निकलेगी। Some habits in our life. कुछ हमारी आदतें हमारे जीवन में, Some habits which are not going for years. और हम देखते कि सालों से हमें इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। Maybe we gossip. शायद हम दूसरों के बारे में बुरा बातें करते हैं। Maybe you use bad words. शायद आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो। Maybe you have a habit of fighting. शायद आपको झगड़ा करने का आदत है, Maybe drinking or smoking. या शराब पीने का, या सिगरेट फूकने का, Maybe using tobacco. या टोबैको या मिश्री का इस्तेमाल आप करते हो, Or involved in bad pictures or pornography or things like या that. आप गंदे चित्र देखते हो, गंदे तस्वीर देखते हो। When you pray and fast, that bondage will be broken from your life. जब आप उपवास और प्रार्थना करोगे तो वो बंधन जरूर टूट जाएंगे आपके जीवन में। When we pray and fast, maybe wrong idea, something which is in our mind,
maybe bad dreams. Some people say, no, we get bad dreams. और जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हमारे दिमाग में जो गलत सोच है, कुछ लोग कहते हैं मुझे ना बुरे बुरे स्वप्न आता है, And God will set you free from that. परमेश्वर उनसे आपको छुटकारा जरूर देंगे। Maybe some thought pattern which is not going in your life. शायद आपका सोचने का तरीका एक है जो गलत है और वो जा ही नहीं रहा है आपके जीवन से, But during prayer and fasting, you will be set free from that. लेकिन जब आप उपवास और प्रार्थना करोगे तो उससे छुटकारा आपको जरूर मिल जाएगा। You know, if you are taking a major decision in your life, fasting and prayer helps us to take the right decision. अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा सा निर्णय लेना चाहते हो और आप सोच रहे हो क्या करें, तो आप जब उपवास और प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे उस निर्णय को लेने के लिए। And I also seen people, new doors being opened for them during prayer and और fasting. मैंने ये भी देखा कि लोगों के लिए नए द्वार खुल जाते हैं जब वो उपवास और प्रार्थना करते हैं। They will experience answer to prayer. परमेश्वर के ओर से आप देखोगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया। Many times I ask people, write 10 things during prayer and fasting. बहुत बार मैं लोगों से कहता हूँ कि उपवास और प्रार्थना में प्रवेश करने से पहले ऐसे 10 चीज लिखो। And many times people have testified, jobs being released, healings happening. और बहुत बार लोगों ने गवाही दी कि देखो मैंने ये 10 चीज लिखा और उसमें से परमेश्वर ने उत्तर दिया है, मुझे नौकरी मिल गई है। Even last fasting time, some people testified about job being released, healing happened. और पिछले उपवास के समय में भी लोगों ने गवाही दी कि उनको नौकरी मिली, चंगाई मिली। And even I want to tell you, some people have debts. God can set you free from debts. और मुझे ये भी कहना है कि कुछ लोगों के जीवन में कर्जा है और परमेश्वर आपको उन कर्जे से भी छुटकारा दे सकते हैं Even through this prayer and fasting. इस उपवास और प्रार्थना के दौरान। Sometimes we have this habit of taking money from others. कभी कभी एक आदत बन जाती है कि हम लोगों से हमेशा उधारी लेते हैं। And it is a stronghold. God can set you free. ये एक बंधन है और परमेश्वर आपको इससे छुटकारा जरूर दे सकते हैं। As we are going into this 20 days of prayer and fast, I want to encourage you. Take a paper, write 10 things that you want to see in your life. और जैसे हम इस उपवास और प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे 10 चीज लिखो। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, लिखो 10 चीज जो आप चाहते हो और आप वहां पे परमेश्वर का कार्य को देखना चाहते हो। And the second point I want to tell you is all can pray and fast. Okay? दूसरी बात जो मुझे आप सभी को बताना है कि आप सभी लोग उपवास और प्रार्थना कर सकते हो। Here in Jonah chapter 3, it says there that everyone in the kingdom, King made a publicize this decree that everyone should fast. अगर आप योना के 3 अध्याय और 7वें वचन में आएंगे, वहां पे आपको दिखाई देगा कि राजा ने एक तरीके से ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग उपवास और प्रार्थना करें। Including beasts, including animals, including everything in their kingdom should not taste or drink anything. वहां के राज्य के सभी लोग, मनुष्य, प्राणी, भेड़ बकरी, सभी लोग, यह आदेश था कि कोई भी खाना पीना नहीं, कोई भी खाना नहीं खाएंगे और कोई भी पानी नहीं पिएंगे। And fasting was very common in the early church. पहले की कलीसिया में अगर आप देखेंगे, वहां पे वे लोग उपवास और प्रार्थना करते ही थे। I want to share it from the Paul's life. मैं पौलुस के जीवन से बताना चाहता हूँ। It is not much written, but it is a habit. ज्यादा इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन ये एक आदत थी। Because it is not written much, people take light of it. कभी कभी लोग सोचते कि अरे इसके बारे में कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं है, शायद कोई जरूरी नहीं है, और लोग इसे हल्के रूप से लेते हैं। So 2 Corinthians chapter 11 verse 27. 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और 27 वचन। Let's read that. आइए हम पढ़े। When Paul talks about his life, जब पौलुस अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, about what difficulties he went through, कि क्या मुश्किल परिस्थिति से वे गुजरे। 2 Corinthians chapter 11 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय verse 27 और 27 वचन। Yeah. परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उजाड़ में रहना।
Okay, so Paul is saying what he gone through in his life. और पौलुस यहाँ पे हमें बता रहा है, अगर इन वचनों को आप देखते हो, कि उनके जीवन में वो किस परिस्थिति से गुजरे हैं. He's saying, I often, what he's saying, he says in fastings often. और अगर आप 27वां वचन को देखते हो, लिखा है बार बार उपवास करने में. हम लोग we fast बार often. क्या ये उपवास करना हमारी एक आदत है? क्या हम बार बार उपवास करते हैं? And it's good habit to fast once in a week. बहुत अच्छी आदत है कि आप हफ्ते में एक बार तो उपवास पकड़े. I remember from the time I came to the Lord, मुझे याद है कि जब से मैं मसीह बना हूँ, I am fasting every Friday until unless if some major sickness or something, I'm not skipped Friday, but otherwise every Friday is a fasting and prayer day for me. और फ्रैंकी के लिए शुक्रवार का दिन एक उपवास और प्रार्थना का दिन रहा है सालों से. Okay, and Paul is saying I often fast. और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैंने भी बार बार उपवास रखा है. And if you see the life of Jesus, Jesus once fasted for 40 days. अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हो कि उन्होंने 40 दिन तक उपवास की. Some people says, I am old, I cannot fast. कुछ लोग सोचते नहीं नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो काफी बुजुर्ग हो चुका हूँ. I want you to read Luke chapter 2 verse 37. आइए मेरे साथ लूका का 2 अध्याय और 37 वचन में. Let's read that. आइए हम पढ़े लूका का 2 अध्याय और 37 वचन. वह 44 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी. Okay, so let me read this in English. And there was a widow about 40 years, 84 years, okay, which departed not from the temple, but served God with fasting and prayer night and day. Yeah. मैं फिर से पढ़ती हूँ लूका का 2 अध्याय और 37 वचन. वह 44 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी. So this lady who was a widow, और ये स्त्री थी जो वो विधवा थी. And it says that she is 84 years old. यहाँ पे 44 वर्ष थी वो. Okay, and she fasted and prayed. और उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया था. Can you think 84 years, when you become 84, you will fast? और यहाँ पे अगर आप 36 वचन में लिखा है वो बहुत बुढ़ी थी, क्या आप तब तक उपवास करते रहोगे? 84 years, if you are old, you will fast. जब आप 84 years के हो जाओगे, क्या तभी भी आप उपवास रखोगे? You know what happened to this lady? This lady saw Jesus. आपको पता है स्त्री के साथ क्या हुआ? इस स्त्री ने यीशु मसीह को देखा. Then she died. तब उनकी मृत्यु हुई. That was her desire. यही तो उनकी इच्छा थी. I tell you, when you fast and pray with a desire, yes, I want to see this happen, I tell you, you will see the fulfillment of it. जब आप उपवास और प्रार्थना करोगे इच्छा के साथ, तब आप उसको होते हुए जरूर देखोगे अपने जीवन में. Everybody can pray and fast. सभी लोग उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं. Okay, there's no excuse. Okay. कोई एक्सक्यूज या कोई बहाना अब नहीं चलेगा. Hallelujah. Okay, and the last point I want to share. और आखिरी बात is intercession is very important. That is nothing but praying is important. प्रार्थना बहुत जरूरी है. मध्यस्थ का प्रार्थना इस समय बहुत जरूरी है. When you fast, we should pray. जब हम उपवास करते हैं तब प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है. And now going back to Jonah chapter chapter 3 verse 8, it says they cried, everybody cried in mightily, it says, or loud voice. योना के 3 अध्याय में हम वापस आएंगे. वहां पे लिखा है कि लोगों ने दुहाई दी चिल्ला चिल्ला कर. And they prayed. और उन्होंने प्रार्थना किया.
And it is important that we pray on behalf of others. और बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। That is intercession. यही तो मध्यस्थ प्रार्थना है। When you pray for your children, when you pray for your family, when you pray for the church, when you pray for your city, we are praying, we are doing intercessory prayer. जब आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हो तो उसे मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। Jesus is our intercessor. यीशु मसीह भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए मध्यस्थ का प्रार्थना करते हैं। And we also should pray for others. और ऐसे हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। Romans chapter 8 verse 34. रोमियो का 8वां अध्याय और 34 वचन। Romans 8 verse 34. रोमियो का 8वां अध्याय और 34 वचन। And who is he who condemns? If Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. रोमियो का 8वां अध्याय और 34 वचन में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Jesus is interceding for you and for me. यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। And not only that, Jesus done the will of God through intercession. और उतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर का आज्ञा को मान ली, पूरा किया जब उन्होंने ये मध्यस्थ का प्रार्थना किया। In everything Jesus done knowing the will of God. जो भी यीशु मसीह ने किया वो ऐसे किया परमेश्वर की आज्ञा को जान के ही किया। And when we real prayer is when we pray according to God's will. और सही में अगर आप प्रार्थना क्या है ये देखोगे तो ये वही है कि हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। Colossians chapter 1 verse 16 it talks about Jesus. Everything is created by Jesus. कुलोसियों का पहला अध्याय और 6ठे वचन में लिखा है कि सभी चीजों की रचना यीशु मसीह के लिए ही तो किया है। No, everything is created by Jesus and for Jesus. और सभी वस्तु जो है यीशु मसीह के लिए रचा गया है और यीशु मसीह ने ही रचाया है। Let's read that. Colossians chapter 1 verse 16. कुलोसियों का पहला अध्याय और 16वें वचन में। Yeah. Let's read that. For by him all things were created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Whatever they be, thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. कुलोसियों का पहला अध्याय 16वें वचन में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। So now it says Jesus created, and everything is created by Jesus. अब यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने सारी सृष्टि की निर्माण की है। And we will see how it is an intercession. और हम देखेंगे कि कैसे ये एक मध्यस्थ प्रार्थना भी है। When you see Genesis chapter 1, जब आप देखते हो उत्पत्ति का पहला अध्याय को, it says God spoke and things came to existence. लिखा है कि परमेश्वर ने वचन दिया, परमेश्वर बोले और सब कुछ वैसे ही हुआ। Everything is when God spoke the word, light became, earth became, universe became. जब परमेश्वर ने वचन दिया, जब आज्ञा दी, तब ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, इस पूरे विश्व का निर्माण हुआ। So who was doing it? लेकिन ये कौन कर रहा था? It was created by Jesus. सारी वस्तुओं की सृष्टि यीशु या निर्माण यीशु मसीह ने ही किया। When Jesus spoke the word, जब यीशु मसीह ने सिर्फ आज्ञा दिया या वचन बोले, so God the Father's will, Jesus said it, and it was fulfilled by the Father, by the Holy Spirit. और ये परमेश्वर पिता ने वचन दिया और यीशु मसीह ने बोला और पवित्र आत्मा ने कार्य किया। And that is how intercession works. ऐसे ही मध्यस्थ का प्रार्थना कार्य करता है। So when we are also supposed to intercede, तो जब हम मध्यस्थ का प्रार्थना करना है हमें, and we know the will of God, हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, and then we speak
और तब हम बोलते हैं and things happens. और कार्य होता है, Holy Spirit works. पवित्र आत्मा का कार्य होने लगता है। It is important, our mouth is important to do the intercession, do the things of God in this world. तो हमारा मुंह या हमारे शब्दों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि परमेश्वर का आज्ञा जो है या परमेश्वर की जो इच्छा है वो इस जगत में पूरा हो। You know, God always works through us. परमेश्वर हमेशा हमारे द्वारा ही कार्य करता है। He is waiting for his people to ask, to intercede, to pray. वो हमेशा रुका ही है कि कब उनके लोग प्रार्थना करें, कब उनके लोग मांगे, so that he can, by the power of the Holy Spirit, he can do it. ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो उस कार्य को पूरा कर सके। So the mouth that God is given to us is not for any other purpose. तो जो मुंह परमेश्वर ने हमें दिया है उसका और कोई वजह या कारण नहीं है, Not to gossip या कोई और दूसरा मकसद नहीं, जैसे दूसरे के बारे में बातें करना or fighting or bad words. या झगड़ा करना या गाली देना। Okay, this is to speak God's word and to intercede. ये इसलिए दिया गया है हमें ताकि हम परमेश्वर के वचन को ऐलान कर सके, हम प्रार्थना कर सके। You know, 1 Timothy chapter 2:1 says that he wants all of us to pray for everyone on the earth. और एक तिमोथी का दूसरे अध्याय में लिखा है कि यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब प्रार्थना करें सभी के लिए जो इस पृथ्वी पे है। Let's read 1 Timothy chapter 2 verse 1. आइए हम देखें एक तिमोथी का दूसरा अध्याय और पहला वचन। Therefore I exhort first of all that supplication, prayers, intercessions and giving thanks to be made to all men. अब हम देख रहे एक तिमोथी का दूसरा अध्याय पहला वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। Verse 2 is interesting, for kings and all who are in authority, that may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. और दूसरा वचन भी काफी दिलचस्प है। देखिए लिखा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और भक्ति से जीवन बिता पाए। So we are called to pray so that there may be peace upon this land, there may be goodness upon this land, for our authorities, for everyone, so that God can work on this earth. तो यहाँ पे लिखा है कि हमें प्रार्थना करना है राजाओं के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए, ताकि हम विश्राम और चैन के साथ अपना जीवन जी सके और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो और हमारे जगत में हो। You know, usually something bad happens, what we do, we grumble. क्या होता है कि जब कुछ बुरा हो जाता है हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। We grumble against everybody. सबके विरुद्ध हम कुड़कुड़ाने लगते Grumble हैं। against government, सरकार के विरुद्ध, corporator. कॉर्पोरेटर के विरुद्ध। How many of us pray for our corporator? लेकिन कितने लोग अपने कॉर्पोरेटर के लिए प्रार्थना How करते many of हैं? us pray for our MLAs? हमारे एमएलए के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? You know, we don't pray for these people. We only grumble against हम this. इन लोगों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, हाँ कुड़कुड़ाते जरूर। You know, but we are called, Bible says, when we pray for these people, when we pray for our city, things will happen. लेकिन हमें बुलाया गया है ताकि हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तब कार्य को होते हुए हम जरूर देखेंगे। You know, God always, God can work alone, but God choose to work through you, so that when you pray, He can act. परमेश्वर अकेले कार्य कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वे चाहते हैं कि वो हमारे द्वारा ही कार्य करे। जब हम प्रार्थना करें तब वो कार्य करते हैं। So your small and big prayers are very important. तो आपका प्रार्थना छोटा हो बड़ा हो जो भी है उसका महत्व स्थान है। When you come together and pray, it is very important. जब हम एक साथ आके प्रार्थना करते हैं बहुत महत्वपूर्ण समय है वो। You know, one scripture is, Revelation chapter 5 verse 8. It says that there is a ball in heaven, which is the prayers of the saints being taken to heaven.
प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है उस कटोरे के बारे में जो स्वर्ग में है, और उस कटोरे में सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं है, and which is going to heaven. और जो स्वर्ग की ओर जाता है। Let's read that. आइए हम देखें प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरा हुआ सोने के कटोरे थे, ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है। And we don't pray, God cannot answer your, do anything much on the earth. जब तक हम प्रार्थना नहीं करते तब तक परमेश्वर इस पृथ्वी पे कुछ नहीं कर सकते। So evil things will happen. इस कारण जो दुष्ट कार्य है वो होते ही जाएंगे। It is important you and me to pray for everything that is around us. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप और हम इन बातों के लिए प्रार्थना करें। Recently, now during this lockdown time in Mumbai, many of our pastors we come together and pray every day. Actually, इस लॉकडाउन के दौरान इस नवी मुंबई में बहुत सारे पासवान जो है ऑनलाइन प्रार्थना में जुट जाते हैं। so one day the prayer was about the judiciary of India. Okay? तो एक दिन उन्होंने हमारे न्यायाधीश के लिए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और वो सब के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। And the next day, और दूसरे ही दिन we heard in the news that there is a guy who was innocent person who was put in the jail in Manipur. He was a journalist, was released. We prayed for them and he was released. एक पत्रकार था जो बेगुनाह था और उन्होंने उनको जेल में डाल दिया गया था, और उन्होंने इनके लिए प्रार्थना किया, और दूसरे दिन अखबार में खबर मिली कि उसे रिहा किया गया। I tell you, when we pray, God acts on behalf of us. मैं कहता हूँ जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते रहते हैं। Don't take light of your prayer. Every prayer of you, God is waiting so that He can answer it. आपके प्रार्थना को हल्के रूप से ना लो, जो भी आपका प्रार्थना है आप लगातार प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर तो रुका ही है कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। During this prayer and fasting time, let's take it seriously. इस उपवास और प्रार्थना के समय क्यों ना हम इसे गंभीरता से लें। So I want to conclude by saying, तो अंत में मैं कहना चाहूंगा, we are bringing God's will as we fast and pray in these days. जैसे हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को यहाँ पे ले आते हैं। And fasting helps us in our personal life in many ways, even to know God's will, deliverance and different things. और प्रार्थना हमारी मदद करते हैं, हमें हमारी व्यक्तिगत जीवन में भी कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो, छुटकारा को हम महसूस कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सके। And we all could fast. और हम सभी लोग उपवास कर सकते हैं। And intercession is very important. God works through our intercession. और मध्यस्थ प्रार्थना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर उसी के द्वारा कार्य करता है। The manifold wisdom of God is through the church, happens through the church in this world. और परमेश्वर का जो इच्छा है, उनका ज्ञान है, कलीसिया के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही पूरा होता है। So I want to encourage you, let's all pray and fast. Let's come together and pray in these 20 days and see mighty things happening in our city and our lives. तो मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि हम सब इस 20 दिन के उपवास और प्रार्थना में भाग ले, हमें कलीसिया होने के नाते एक साथ आए और हम अद्भुत कार्य को होते हुए देखेंगे हमारे जीवन में, हमारे शहर में, हमारे कलीसिया में।